In this question, we have to prove that integral 0 to pi by 2 f of sin 2x sin x dx is equals to root 2 times of integral 0 to pi by 4 f of cos 2x cos x dx. So first of all, we will use the identity that 0 to a f of theta d theta is equals to 0 to a f of a minus theta into d theta. So using this identity, consider left hand side. So left hand side, if we consider this left hand side as I, then I will be equals to integral 0 to pi by 2 f of sin 2 into pi by 2 minus x multiplied by sin of pi by 2 minus x dx, and this will be equals to integral 0 to pi by 2 f of sin. Now see this, sin pi minus theta is sin theta, so we get sin of 2x into sin pi by 2 minus x is cos of x dx. So mark this as equation 1 and this value of integral as 2. So if we add 1 and 2, what we get is 2i is equals to integral 0 to pi by 2 f of sin 2x into cos x plus sin x dx. Now we will use the identity that integral 0 to 2a f of x dx is equals to integral 2 times of integral 0 to a f of x dx if the condition f of 2a minus x is equals to f of x. So in this case, see, if we substitute x by pi by 2 minus x, this function will be sin pi minus x, that will be sin x, and here also we will get cos x plus sin of x. So we can write 2i as 2i will be equals to 2 times of integral 0 to pi by 4 f of sin 2x into cos x plus sin x, and multiply and divide this by root 2 into dx. So this will be equals to I is equals to 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of sin 2x into, now see this will form the formula of sin pi by 4 plus x, because here 1 by root 2 can be written as sin pi by 4, and when we have 1 by root 2 into sin x, so 1 by root 2 can be written as cos pi by 4 into dx. So this will be equals to integral 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of sin 2 into replace x by pi by 4 minus x into sin pi by 4 plus x by pi by 4 minus x dx. So this is equals to 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of sin. See this will form pi by 2 minus 2x, which will be cos of 2x, not sin, this will be cos 2x, and this will be sin pi by 2 minus x, that is cos of x dx. Sorry, I made a mistake here. Here root 1 by root 2 will be multiplied, and here we will left with root of 2, not 1 by root 2. So here all we have root 2 and root 2. So our I will be equals to root 2 times of 0 to pi by 4 f cos 2x into cos x dx, and this is what we have to prove in this question. हेलो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज हमें यहाँ पे लिमिट गिवन है 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन में 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x dx. ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो हम यहाँ पर देखें, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज, अगर हम देखें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा. सॉरी, हम बीच में ही लिख लेते हैं. तो अगर हम देखें तो साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन 2x, सॉरी माइनस ऑफ साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं हम इसको, और ये क्या है साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया, हमने पुट कर लिया दैट इज साइन x माइनस ऑफ कॉस x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का हो जाएगा कॉस x और कॉस x का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए लिमिट अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या है 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन 0 पे 0 होता है और cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो t की वैल्यू हो गई -1। अगर x की वैल्यू है π/4 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है π/4 पे दैट इज 1/2, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो अब हम देखें हमारी लिमिट रखें, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी दैट इज -1 to 0, ठीक है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किससे डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 + 16। अब यहाँ पर देखिए क्या है साइन 2x है, 2x इक्वल टू क्या लिखा हमने 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको हमने t ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, और लिमिट हो गई -1 to 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो हम 16 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये लिमिट तो -1 to 0 एज इट इज रहेगी। यहाँ पर हो जाएगा 9 + 16 है, सॉरी ये 9 + 16 माइनस ऑफ 16 टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो हो जाएगा -1 to 0 1/9 + 16 कितना हो जाएगा दैट इज 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अगर अब हम 16 कॉमन ले लें तो 1/16 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 to 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये a² माइनस एक्स स्क्वायर का बन गया। तो वो क्या होता है, हमें फॉर्मूला लगा लें हम यहाँ पर, तो 1/16 वो क्या होता है 1/2a, यहाँ पर a क्या है 5/4 है, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 5/4 प्लस t अपॉन में log ऑफ 5/4 प्लस t अपॉन में 5/4 माइनस ऑफ t, -1 to 0 क्या हो गई हमारी लिमिट हो गई, ठीक है। आगे सॉल्व करें हम, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल, तो ये 2 से करेंगे तो 8 1/40 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर देखें एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 + 40 अपॉन में log ऑफ 5 माइनस 40, लिमिट क्या है -1 to 0, ठीक है। अब हम लिमिट रख देते हैं, तो ये 1/40 एज इट इज रहेगा। हमने पहले लिमिट रखी log 0, देखिए 0 0 करेंगे तो ये log 5/log 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 करेंगे तो ये -4, और तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 5 माइनस 4 यानी कि log ऑफ 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 क्या हो गया 9 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/40 log 1 माइनस ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस ऑफ log 9, यहाँ माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या बचा log 1 से log 1 कैंसिल, ये आ गया 1/40 log ऑफ 9। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x टाइम्स f of sin x dx इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi f of sin x dx। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से ये जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है इसको मैं i अज्यूम कर लेता हूँ, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x इंटू f of
साइन एक्स dx। ओके, लेट्स से ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करने से पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैपिटल एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैपिटल एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। ओके, ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है अगर a से b के बीच में मेरा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड होगी। अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 टू पाई। जस्ट हमें क्या करना है? x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। a और b क्या है? यहाँ पे लिमिट्स है, तो a प्लस बी यहाँ पे पाई बन जाएगा, राइट। तो मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, तो पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट, into dx which is equal to integration from 0 to pi minus x sin of pi minus x, तो sin x के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? f of sin x dx, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं 1 और 2 दोनों को ऐड करता हूँ तो 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बनेगा 2 टाइम्स आई, ओके, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो एफ ऑफ साइन एक्स जो है कॉमन आ जाएगा। लिमिट्स मेरे पास सेम रहेंगे 0 टू पाई, राइट। सो एफ ऑफ साइन एक्स मेरे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा x और यहाँ पे मेरे पास बचेगा पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ से x की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, dx रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स और मल्टीप्लाई विद पाई, सो इनटू पाई dx, राइट। ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से 2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा और पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो आई मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2, पाई इंटीग्रेशन के बाहर, 2 यहाँ से डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, राइट, एफ ऑफ साइन एक्स dx, ओके। और आई जो मैंने एज्यूम किया था इनिशियली वो क्या था? 0 टू पाई एक्स टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स dx, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और यही मेरे को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 3/2 मॉडुलस ऑफ x sin पाई x dx, ओके। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2, इसमें मेरे से क्या पूछा हुआ है? इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 3/2 मॉडुलस ऑफ x sin पाई x, ओके, dx। अब यहाँ से इस मॉडुलस को ओपन करने के लिए हम x के डिफरेंट इंटरवल्स कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट केस है x बिलोंगिंग टू -1 टू 0। x अगर -1 से 0 के बीच में तो पाई टाइम x कहाँ से लाई करेगा? पाई माइनस एक्स लाई करेगा माइनस पाई से 0 के बीच में। पाई टाइम्स x जो है माइनस पाई से 0 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन ऑफ पाई एक्स जो होगा उस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ पाई टाइम्स एक्स विल बी लेस देन 0। अब x भी नेगेटिव है, राइट, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। साइन ऑफ पाई एक्स भी क्या है? नेगेटिव है। दो नेगेटिव फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? x टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू 0, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई? लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अगर मैं सेकंड सेट कंसीडर करता हूं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो पाई टाइम्स x कहां से कहां लाई कर रहा होगा? वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। 0 से पाई के बीच के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पाई टाइम्स x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन ऑफ पाई x क्या होगा? उस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट और सेकंड इंटरवल क्वाड्रेंट में साइन पाई x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब 0 से 1 के बीच में x है तो x भी पॉजिटिव, साइन ऑफ पाई टाइम्स x भी पॉजिटिव,
और दो पॉजिटिव फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 whenever x belongs to 0 to 1, राइट। ये लेट्स से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम थर्ड सेट कंसीडर करते हैं। थर्ड सेट मेरा क्या है, थर्ड सेट है x बिलोंगिंग टू 1 to 3/2। x अगर 1 से 3/2 के बीच में है तो पाई टाइम x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, पाई टाइम x लाई कर रहा होगा पाई से लेके 3π/2 के बीच में, राइट, पाई टू 3π/2। अगर पाई टाइम्स x जो है पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ पाई एक्स विल बी लेस देन 0। अब x पॉजिटिव है, साइन पाई एक्स नेगेटिव है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज x टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स विल बी लेस देन 0 whenever x belongs to 1 to 3/2, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मेरे को जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी थी वो फंक्शन क्या था, मॉडुलस ऑफ x टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स, राइट। और मैंने हर इंटरवल में x टाइम्स साइन पाई एक्स का साइन चेक कर लिया है कि किस पार्ट में वो पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है। तो अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो x टाइम्स साइन पाई एक्स जो है वो एज इट इज बाहर आएगा, ओके, x टाइम्स साइन पाई एक्स वो मॉड्यूलस से एज इट इज बाहर आएगा। कब आएगा, जब ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव किस किस इंटरवल में, -1 से 0 के बीच में एंड 0 से 1 के बीच में। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा, राइट। और सेकेंडली ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, माइनस ऑफ x साइन पाई एक्स। कब आएगा, जब ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव किस इंटरवल में है, 1 से 3/2 के बीच में। तो इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, राइट। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपने फंक्शन को दो इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब मैं इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। इंटीग्रेशन क्या थी, -1 से 3/2 मॉडुलस ऑफ x टाइम्स साइन पाई एक्स dx। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, राइट, -1 to 1। इस पार्ट में जो मॉडुलस ऑफ x टाइम्स साइन पाई एक्स है वो क्या है, जस्ट x टाइम्स साइन पाई एक्स। पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा तो x टाइम साइन पाई एक्स dx, राइट, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2, राइट। इस इंटरवल में इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या है, -x साइन पाई एक्स। तो -x टाइम्स साइन पाई एक्स dx, राइट। इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या होता है, लेट्स से इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। मेरे पास दो फंक्शन है, vx टाइम्स ux dx, ओके। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज vx को हम एज इट इज रखेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन की, ओके। और फिर जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे a to b माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b d by dx of first function, that is d by dx of v, okay, multiply with indefinite integration of second function, okay। और फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके हम होल की क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। इसको यूज करके हम इन दोनों इंटीग्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, सो आई मेरा क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन है मेरा x, तो x को एज इट इज रखेंगे। सेकंड फंक्शन है मेरा साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो हो जाएगी माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, राइट। ये हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में हमें लिमिट्स पुट करनी है और लिमिट्स मेरी क्या है, -1 to 1, राइट। फिर यहाँ पे माइनस साइन, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dv by dx, मतलब फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन है मेरा x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है साइन पाई एक्स, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस पाई एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब हम सेकंड इंटीग्रेशन को एक्सपेंड करके देखते हैं। तो प्लस इस केस में मेरा जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, -x। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सो -x
सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन सेम है साइन पाई एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, राइट। और इस पूरे पे हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। लिमिट क्या है 1 to 3/2, राइट। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 3/2। फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन है माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनटू सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगी माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, राइट, इनटू dx। तो यहाँ पे मेरे i की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम i को सिंप्लीफाई करते हैं तो i विल बी -1/पाई कॉमन, सो -1/पाई कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 इंटू कॉस पाई, दैट इज कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी -1 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई, राइट, कॉस ऑफ माइनस पाई, राइट। ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, तो कॉस पाई एक्स अपॉन पाई की इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर एंड लिमिट्स विल बी -1 to 1, राइट। तो ये वाला पोर्शन हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 1/पाई कॉमन, फिर से मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करनी होगी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होगी, किसमें x टाइम्स cos पाई x में। तो सबसे पहले x को 3/2 सब्स्टिट्यूट किया, तो 3/2 cos ऑफ 3π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 इंटू कॉस पाई, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई, राइट। उसके बाद मेरे पास ये लास्ट वाला पोर्शन बचता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर, तो माइनस इंटीग्रेशन किसकी बची cos पाई एक्स अपॉन पाई की, वो क्या हो जाएगी साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर एंड लिमिट्स विल बी 1 to 3/2, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया i आ गया, यहाँ से i बन जाएगा -1/पाई इंटू cos पाई इज -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos ऑफ माइनस पाई भी कितना होता है -1 ही होता है, ओके। प्लस ये वाली जो टर्म है इसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1, तो जब मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन पाई जो कि 0 होता है, लोअर लिमिट है -1, तो जब मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बन जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई, वो भी 0 होता है, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी, राइट। उसके बाद फिर मेरे पास ये वाली टर्म आएगी 1/पाई, ओके, इंटू 3π/2 टाइम्स cos ऑफ 3π/2, cos ऑफ 3π/2 0 होता है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0 माइनस cos पाई इज -1, ओके। फिर ये वाली टर्म लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होगी, अपर लिमिट है 3π/2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ऑफ 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 1, तो यहाँ पे साइन पाई बनेगा जो कि 0 हो जाएगा, ओके। सो इट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा -2, तो -2 इंटू -1 हो जाएगा 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन पाई, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन पाई, माइनस साइन 3π/2 होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/पाई प्लस 1/पाई कितना हो जाएगा 3/पाई, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 3/पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन, लिमिट्स हमें दिए हुए हैं 0 to 1 और इंटीग्रेशन हमें किसकी करनी है tx प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx, ओके। तो हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है जहाँ पे n जो है मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है और t एक ऐसा पैरामीटर है जो x से क्या है इंडिपेंडेंट है, राइट। और हमें शो क्या करना है, इसको इवेल्युएट करने के बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू k इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस k dx इज इक्वल टू 1 ओवर nck इंटू n प्लस 1, ओके। यहाँ पे k क्या हो सकता है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n। तो ये हमें करना है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो सॉल्व करते हैं, हमें क्या किया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tx प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx, राइट।
ये जो दो टर्म है t इंटू एक्स माइनस एक्स, इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t माइनस 1 इंटू एक्स, राइट, प्लस 1 होल रेज टू पावर n। और यहाँ पे क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, ओके, इंटू dx। और अगर इस लीनियर फंक्शन रेज टू पावर n की मेरे को इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर ax प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a टाइम्स n प्लस 1। यहाँ पे a क्या है, x का कोफिशिएंट, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, राइट, और n जो है वो एक्सपोनेंट है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, ओके, अगर इस इंटीग्रेशन को मैं i एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये जो लीनियर टर्म है ax प्लस b वो एज इट इज आएगी, तो t माइनस 1 इंटू एक्स, राइट, प्लस 1, ये एज इट इज टर्म रेज टू पावर n प्लस 1, तो इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है t माइनस 1, राइट, इंटू n प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, और लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1, राइट, विच इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे पहले मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t रेज टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट इज 0, x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ओके। सो t रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t माइनस 1 टाइम्स n प्लस 1, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, i की वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, ऊपर मेरे पास क्या बच जाएगा, t रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t माइनस 1। न्यूमिनेटर को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, न्यूमिनेटर के दो फैक्टर करेंगे, t माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन टी रेज टू पावर n, ओके। ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय टी माइनस 1, राइट। न्यूमिनेटर के मैंने फैक्टर्स कर लिए, क्योंकि t को 1 सब्स्टिट्यूट करने पे न्यूमिनेटर 0 हो रहा है तो t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया t माइनस 1 से, डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू सो ऑन टी रेज टू पावर n। ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, सो फाइनली जो i की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन टी रेज टू पावर n, राइट। तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें मेरे को क्या करना था, i की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए लेट्स हम i को फिर से कंसीडर करते हैं। i था 0 to 1 tx प्लस 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n dx, राइट, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tx प्लस 1 माइनस एक्स को अगर एक नई टर्म एज्यूम कर लूँ, ओके। सो tx को एक पार्ट एज्यूम कर लिया, 1 माइनस एक्स को दूसरा पार्ट एज्यूम कर लिया, ओके, रेज टू पावर n। तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करता हूँ a प्लस b रेज टू पावर n, तो मेरे पास i क्या बन जाएगा, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ओके। तो पहली टर्म क्या होगी, nc 0 tx रेज टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, राइट, प्लस nc 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू t टाइम्स x प्लस nc 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 tx रेज टू पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, ncn 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 0 एंड tx रेज टू पावर n, राइट। इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे हम, dx के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इस पूरी सीरीज को अगर मैं समीशन की टर्म में लिखूं तो मेरे पास i क्या बन जाएगा, i विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n c r, ओके, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस r एंड tx रेज टू पावर r, ओके, ब्रैकेट क्लोज इनटू
dx, राइट। और ये जो समीशन है वो इंटीग्रेशन के बाहर भी मैं लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, समीशन r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, NCR 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस r, और dx रेज टू पावर r को मैं क्या लिख सकता हूँ, d रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर r, ओके, इंटू dx। अब मेरे को पता है NCR जो है वो x से इंडिपेंडेंट है, t रेज टू पावर r भी x से इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ से मेरा जो i है वो क्या बन जाएगा, देखो NCR और t रेज टू पावर r जो है वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो समीशन r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n NCR मल्टीप्लाई विथ t रेज टू पावर r, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस r इंटू एक्स रेज टू पावर r dx, राइट। तो यहाँ से मैंने i को इस तरीके से लिख लिया, और एक जो ऊपर मैंने अभी i की वैल्यू इवेल्युएट की थी, अगर इन दोनों i की वैल्यूज को मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले जो मैंने i की वैल्यू इवेल्युएट की थी वो क्या थी, 1/n+1 इंटू 1+t स्क्वायर अप टू सो ऑन t रेज टू पावर n, और अभी जो मैंने वैल्यू इवेल्युएट किया वो क्या है, वो है समीशन r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n NCR इंटू t रेज टू पावर r इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस r इंटू एक्स रेज टू पावर r dx, राइट। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन मेरी बन जाएगी समीशन r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n NCR t रेज टू पावर r इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस r एक्स रेज टू पावर r dx शुड बी इक्वल टू, जो पहले वैल्यू इवेल्युएट की थी वो क्या थी, 1/n+1 इंटू 1 प्लस t स्क्वायर अप टू सो ऑन t रेज टू पावर n, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अगर मैं t रेज टू पावर k का कोफिशिएंट देखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे को t रेज टू पावर k का कोफिशिएंट देखना है तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट मैं r को क्या पुट करूंगा, k पुट करूंगा, राइट। समीशन में मेरे पास बहुत सी टर्म आएंगी, अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ तो t रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट मिलेगा, अगर मैं r को 1 पुट करता हूँ तो मेरे को t का कोफिशिएंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं r को k सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस पूरे एक्सपेंशन में तो मेरे को क्या मिल जाएगा, t रेज टू पावर k का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, ओके, सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर k ऑन बोथ साइड्स, ओके, दोनों साइड से मेरे को क्या करना है, t रेज टू पावर k का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो यहाँ से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो समीशन में मेरे पास बहुत सारी टर्म आएंगी, पहले मैं r को 0 पुट करूंगा, फिर r को 1 पुट करूंगा, जैसे जैसे मैं r की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो t की जो पावर है वो चेंज होती जाएगी। सिमिलरली जब मैं r को k पुट करूंगा तो मेरे पास t रेज टू पावर k का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, NCK, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा, t रेज टू पावर k, उसी का मेरे को कोफिशिएंट देखना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस k, राइट, इंटू एक्स रेज टू पावर k dx शुड बी इक्वल टू, इस तरफ से अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है कि 1 का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/n+1, t का कोफिशिएंट भी क्या है, 1/n+1, तो t रेज पर k का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 1/n+1, राइट। यहाँ से अगर मैं NCK को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस k एक्स रेज टू पावर k dx इज इक्वल टू 1/n+1, राइट, 1/n+1 इंटू NCK, और यही एक्सप्रेशन जो था वो मेरे को सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मेरा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। सेकंड पार्ट में मेरे को यही एक्सप्रेशन प्रूफ करना था, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस प्रूफ्ड। तो मेरे दोनों पार्ट का आंसर हो गया, राइट। फर्स्ट पार्ट का भी आंसर मैंने लिख लिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था, 1/n+1 इंटू 1 प्लस t स्क्वायर अप टू सो ऑन t रेज टू पावर n, और सेकंड पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, लेट अ फंक्शन बिलोंगिंग फ्रॉम r टू r, डोमेन उसकी ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, ये जो ब्रैकेट है वो किसको डिनोट कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो इसको हम जिंट x बोलते हैं। तो fx इज इक्वल टू जिंट x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड fx इज 0 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब बोल रहे हैं अगर i जो है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 2 x टाइम्स f ऑफ x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1 dx,
देन द वैल्यू ऑफ 4i माइनस 1 इज। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, देखो ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा इफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 2 हो, और ये 0 हो जाएगा अगर एक्स जो है ग्रेटर देन 2 हो। अब अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर देखना हो तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, और ध्यान रखना है यहाँ पे भी एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, और ये 0 हो जाएगा इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो जाए, राइट। अब एक्स स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 2 कब होगा, जब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा हो -√2 से +√2, राइट। और एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 2 कब होगा, जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी, राइट। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 देखूं, सो एफ ऑफ एक्स प्लस 1, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम रिप्लेस कर देंगे x को x प्लस 1 से, तो वो क्या हो जाएगा, देखो जिंट ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ओके, एंड इट इज 0 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। अब x प्लस 1 अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1, और x प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 2 है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की डेफिनेशन आ गई। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, -1 से 2 x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। सो आई जो है वो मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो i को वेरियस इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है। सो i जो होगा उसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम, सबसे पहले -1 से 0 x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो -1 से 0 के बीच में है x, मतलब क्या x कौन से इंटरवल में लाई कर रहा होगा, x जो है वो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा होगा, राइट। -√2 से √2 के बीच में ये तो आएगा पूरा का पूरा इंटरवल जो -1 से 0 के बीच में होगा, तो उसमें एफ एक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगी, x टाइम्स जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब अगर x -1 से 0 के बीच में है, मतलब 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है, तो क्या होगा, जिंट ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ एक्स प्लस 1 dx, ओके, प्लस अब नेक्स्ट जो इंटरवल होगा वो होगा 0 से 1 के बीच का, तो 0 से 1 देखेंगे x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x अगर 0 से 1 के बीच में है तो अभी भी वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, -√2 से √2 के बीच के जो इंटरवल है, बिकॉज √2 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है, पर x जो है 1 से छोटा है, और ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है तो -√2 से तो ग्रेटर ही होगा, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो फिर से क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 देख रहे हैं, जब x अभी भी क्या है, x 1 से छोटा ही है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। 1 से छोटा है तो सिर्फ जिंट ऑफ एक्स प्लस 1 आएगा, जिंट ऑफ एक्स प्लस 1 dx, ये हो गया। अब हम देखेंगे 1 से √2 के बीच में, ओके, 1 से √2 के बीच में x इंटू जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों, बिकॉज अगर मैं x जो है अभी भी मेरा √2 से छोटा रह रहा है और पॉजिटिव है, तो अभी भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब x जो है ग्रेटर देन 1 हो गया, राइट। 1 से √2 जा रहे हैं तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 से 2 x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर x जो है ग्रेटर देन √2 हो जाए, मतलब √2 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 0 अपॉन 2 प्लस x जो है √2 से 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा dx,
तो अगर x को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो टर्म 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 0। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो i क्या बनता है, -1 से 0 के बीच में एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई होगा। देखो अगर x जो है, x इज बिलोंगिंग टू -1 to 0, so x square will belong to 0 to 1। एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस इंटरवल में इफ x बिलोंगिंग टू 0 to 1, तो अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो भी एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, तो भी एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली किसी भी क्वांटिटी का जो जिंट होता है वो 0 ही होता है। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब लास्ट में हमारे पास ये बचता है, देखो ये तीनों इंटीग्रेशंस तो 0 हो गई। अब अगर x जो है 1 और √2 के बीच में है, x बिलोंगिंग टू 1, √2, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा। देखो एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, राइट। तो i जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to √2 x इंटू, अब अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में तो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 इंटू 1 अपॉन 2 + 0 दैट इज अपॉन 2 dx। ओके, तो हमने i को 4 इंटरवल में तोड़ा, जिसमें से 3 इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो मेरे पास फाइनली ये आ गया, i इज इक्वल टू 1 से √2 x/2 dx। i विल बी, देखो 1/2 बाहर, x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x²/2। सो x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2, लिमिट्स फ्रॉम 1 से √2। सो i क्या आ गया, 1/4 इंटू अपर लिमिट मतलब √2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, ये जो 2 इंटू 2 है उसको 4 बाहर लिख लिया, तो अंदर बचा x², लिमिट अंडर √2 से 1, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 - 1 इज 1। सो i क्या आ गया, 1/4 आ गया। i इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 टाइम्स i इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4i - 1 इक्वल टू 0। और मेरे को 4i - 1 ही कैलकुलेट करना था, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 4i - 1 इक्वल टू 0। थैंक यू। In this question we are given that alpha is equals to integral 0 to 1 e to the power 9x plus 3 tan inverse x multiplied by 12 plus 9x square by 1 plus x square, and we have to find the value of log base e 1 plus alpha plus minus 3 pi by 4. So start with alpha, which is integral 0 to 1 e to the power 9x plus 3 tan inverse x multiplied by 12 plus 9x square divided by 1 plus x square dx. So first of all, let 9x plus 3 tan inverse of x as t. So differentiating both sides, we get 9 plus 3 by 1 plus x square dx equals to dt. So simplifying this, we get 12 plus 9x square divided by 1 plus x square dx as dt. Now look at the limit. When x is equals to 0, t will be 9 into 0 is 0 and tan inverse 0 is also 0. So t will be 0, and when x is equals to 1, we get this value will be 1 and tan inverse 1 is pi by 4. So we get t as 9 plus 3 pi by 4. So value of alpha will be integral 0 to 9 plus 3 pi by 4 e to the power t, and see this whole value is equals to dt. Integration of e to the power t is e to the power t from 0 to 9 plus 3 pi by 4. So alpha will be equals to e to the power 9 plus 3 pi by 4 minus e to the power 0, that is alpha is e to the power 9 plus 3 pi by 4 minus 1. Now this implies that alpha plus 1 is equals to e to the power 9 plus 3 pi by 4. Taking log on both sides, we get log base e 1 plus alpha is equals to
log base e to the power 9 plus 3 pi by 4, and we know that log base e into e is 1, so this will be equals to 9 plus 3 pi by 4. So 9 plus 3 pi by 4 is the answer of this question. 9 plus 3 pi by 4 is the value of log mod 1 plus alpha. So from this, log base e 1 plus alpha minus 3 pi by 4 will be equals to 9. So 9 is the final answer of this question.